السلام علیکم ناظرین، سخن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سخن کا جو سلسلہ ہے جینون فنکار سے ملاقات کا، جینون شاعرات سے، شعراء سے، ادباء سے، اس سلسلے میں آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کا افسانوی مجموعہ تلاش جمال میں گمشدہ عورت جدید افسانے کی ذیل میں عالمی منظرنامے پر اپنی جگہ بنا چکا ہے الحمدللہ، اور مختلف یونیورسٹیز میں بطور سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں کا مجموعہ ماں، پھر افسانوں کا مجموعہ مٹی اور پاؤں، یہ اگر ہم دیکھیں تو ادبی منظرنامے پہ بہت چونکا دینے والے مجموعے ثابت ہوئے۔ آپ اپنی شخصیت کے اندر ایک گلدستہ ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اینکر ہیں، رائٹر ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، استاد ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک سچا دل رکھنے والی فنکار ہیں۔ میری مراد مادام فرخندہ شمیم صاحبہ سے۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ وقاص۔ میں تو ایک دہائی کے قریب مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ علامہ بشیر حسین ناظم صاحب کے ساتھ نعت کے حوالے سے ایک پروگرام میڈم نے ریکارڈ کرنا تھا، تو ہم ان کی لائبریری میں گئے تھے، اور وہاں سے پھر فیض الاسلام کے مشاعرے ہوئے، تو کچھ تھوڑی بہت نیاز مندی کا سلسلہ میرا ہے۔ لیکن میرے جو دیکھنے والے ہیں آج سرحد پار سے بھی اور دنیا بھر سے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرخندہ شمیم کے لیے کیا ہے اور کون ہے۔ وقاص، بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ جہتیں گنوا دیں کہ تعارف کے لیے کسی ایک جہت کا انتخاب میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ان ساری جہتوں کو تھوڑا کر کے نا ایک ذائقے دار ڈش تیار کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے جہاں جہاں فن کا موقع ملا، تحریر کی شکل میں ملا، تدریس کی شکل میں ملا، یا پروڈکشن کی شکل میں ملا، اس کو استعمال کرتی گئی، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر ایک ایسے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے جب اس کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے، اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے اپنے وقتوں میں تو بہت خوش ہوتے تھے کہ آج یہ اچیو کیا، آج وہ اچیو کیا، لیکن کیا ابھی تک کیا؟ جب یہ ذہن بن جائے کہ کیا ابھی تک کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آغاز ہوتا ہے واہ، آپ کے سوچ کا اصل سمت متعین ہونے میں۔ اتنی ساری جہاد کے ہوتے ہوئے بھی، قطع کلامی کی معافی، نمود و نمائش اور شہرت کی اس لوب میں ہم نے نہیں دیکھا، اس دوڑ میں نہیں دیکھا میڈم کو، اور ایک انتہائی سچی اور جینون فنکارہ سے آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ آغاز آپ نے لکھنے کا کب کیا؟ جی، وہی طالبہ تو سائنس کی تھی، میڈیکل سائنس کی طالبہ تھی، بہت اچھی ہونہار طالبہ تھی۔ بس ایک ایسی بیماری نے اس زمانے میں آ لیا کہ والدہ صاحبہ نے صریحاً انکار کر دیا کہ میں تو ٹف پڑھائی نہیں پڑھنے دوں گی، ایک ہی ایک بیٹی ہے، دنیا سے گزر گئی اگر بچپن میں ہی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، باقی ماشاءاللہ ان کے پاس بیٹے تھے۔ تو ان کے اصرار پر اور ان کی ایک خاموش قسم کی ایک مامتا دیکھ کر میں نے پھر چھوڑ دی، وہ سبجیکٹ چھوڑ دیا۔ اور جب میں آرٹس میں آئی تو پھر میں نے دو کام کیے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ پوزیشن بنانے کا شوق بن گیا کہ آرٹس میں آ کر لوگ کہتے ہیں کہ کیا مضمون پڑھا، کیا مضمون، یہ کوئی مضامین ہے، لیکن یہاں پر ایک انفرادیت کروں گی اور ایک لکھوں گی۔ تخلیق کا معاملہ مجھے نہیں علم تھا کہ میرے پاس ہے، مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ تم اپنے اظہار کے لیے قلم کا سہارا لو۔ کیا بات ہے! آپ سے پہلے بھی کیا آپ کے خاندان میں کوئی؟ جی، میرے خاندان میں اس طرح وقاص برابر تواتر سے تو کوئی نہیں رہا، لیکن میرے والد نے بہت اچھا کام کیا جتنا بھی کیا۔ مثال کے طور پر میرے والد صاحب جو تھے، ویسے تو وہ پاکستان ریلویز کے بہت سینئر آفیشل تھے، لیکن ان کے اندر کا فنکار ان کو بار بار تنگ کرتا تھا، لہٰذا وہ بہت خوبصورت نظمیں لکھتے تھے، اور وہ بچوں کی نظمیں میں ریڈیو پاکستان میں سناتی تھی۔ صحیح، واہ 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 واہ۔ اور دوسرا انہوں نے جو بڑا ان کی کریڈٹ پر کام جاتا ہے والد صاحب کے، وہ سن کے آپ کو بھی بڑا اچھا لگے گا۔ 1965 میں جب یہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے پاکستان ریلویز کے پلیٹ فارم سے ایک ڈرامہ کیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے ہندوستانی کابینہ کے ایک وزیر کا کردار ادا کیا، اس وقت کے وزراء، اور وہ اتنا اچھا کر گئے کہ
उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे अयूब खान साहब, उन्होंने डाइस पर आकर, स्टेज पर आकर वालिद साहब को गोल्ड मेडल दिया। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी जो फ़नी ज़िंदगी है, इसके अगर आगाज़ में बात करें तो तख्लीकी सफ़र ज़माना तालिब इल्मी से जैसे सब कहते हाँ हैं वैसे आपका हाँ सिलसिला शुरू हाँ हुआ। तो कौन से रसाइल जराइद थे जिनमें इस वक्त आप जी। छपी? मैं बहुत इस लिहाज से खुशकिस्मत थी, या शायद मेरे भाई का बहुत बड़ा साहिबान था कि मैं इब्तदाई तौर पर ही उर्दू डाइजेस्ट, कौमी वाह डाइजेस्ट, जी वाह। हाँ, और उसके बाद मैं बराह रास्त जो है सब रंग में छपने लगी। सब और रंग की क्या बात है। जी हाँ, और सब रंग में जब मैं छपी तो खुद भी हैरान परेशान हो गई कि जो भाइयों को और घर वालों को पता चला कि इतने बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए रिसालों में इसकी कोई चीज़ छपी है। और उन सब रंग के बारे में आप जानते हैं, मुतनब्बे शकील नज़रियात का मालिक आदिलज़ादा साहब की शकील तो उनके आदिलज़ादा, तो ऐसा बेख्याली एडिटर नहीं में होगा कोई। ऐसा ही था, बेख्याली में कहीं उस पर मलका हुस्न के नाम से अफसाना लिख दिया, और वो अफसाना जो है वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहा कि ये तो कोई बहुत उम्र रसीदा मेच्योर किसी खातून ने लिखा है, ये तजर्बा और मुशाहिदा तो किसी लड़की का तो हो नहीं वाह। सकता। तो बस मुझे वहाँ से एक महमीज मिली, और मैं समझती हूँ कि उसके बाद फिर मैं लगातार जो है इंशाइयों पर भी आई, अफसानों पर भी आई, अखबार जहां में आई, कौमी डाइजेस्ट से होती हुई फिर मैं सीधी फनून में चली गई। अरे हाँ, वाह 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 वाह। और आप फनून से होती भी फिर मैं तजदीद नौ में छपी, फिर अजहर जावेद का जो था तख्लीक में छपी, तख्लीक। फिर उसके बाद जो है लगातार फिर हिंदुस्तान का परचा आंगन में अब वाह। तक छप रही हूँ। जी हाँ। अच्छा, तो तो आपके जो फ़नी सफ़र है वो उसका आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से बतौर प्रोड्यूसर हुआ। हाँ, मेरी पेशा वराना ज़िंदगी का पहला जो पड़ाव है, बल्कि पहला और आखिरी पड़ाव मैं समझती हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न, जो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़, बहुत ज़्यादा माँ जैसा, कि जिस तरह अपनी माँ के बाद अगर किसी ने सिखाया तो पाकिस्तान टेलीविज़न था। और जिस ज़माने में हम लोगों ने जॉइन किया था उस वक्त तो वाक़ई वकास वो सिर्फ़ एक ऐसी माँ था कि जिसने कोई भी सिला नहीं लेना सिवाय देने के। क्या बात है, क्या और बात है। बड़ा कुछ दिया उस इदारे गोल्डन ने। इरा था वो। गोल्डन एरा था। वहाँ से फिर मैंने जब न्यूज़ में आई तो हुआ ये था कि मैं अपने सिलेक्शन में 5 इदारों के लिए मुंतखब हो गई अरे सिलेक्शन के वाह वक़्त। अब वाह। फैसला करना अजीब-ओ-गरीब हो गया, तो मुझे मेरे उस यहाँ पर भी भाई ने ही मुझे रहनुमाई दी। उनके दोस्त थे जमशेद फरशोरी, एक नाम था क्या टीवी में। बात हाँ, है फरशोरी साहब की, अल्लाह फरशोरी जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। ड्रामे का बहुत बड़ा नाम, ड्रामे का बड़ा बहुत नाम। बड़ा उन्होंने नाम। कहा कि फरखंदा से कहें कि इसने सब्जेक्ट पढ़ा है सहाफ़त, और टेलीविज़न इसको वेलकम कहता है, तो शाहिद ऐसा करो कि फरखंदा को पीटीवी न्यूज़ में जो इसका नाम आया है उसमें भेजो। तो भाई ने कहा कि ये तो फनकार सी लड़की है, ये ना हो कि ये वहाँ जाके बोर हो, तंग हो, हालात हाज़रा, खबरें हालात हाज़रा, तो इसको ड्रामे के लिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं देख रही हूँ, जो मेरी आँख देख रही है वो इसके अंदर का एक सहाफ़ी देखती है, और उसका विजिलेंस ये ज़ाहिर करता है कि ये तुम्हारी भी आरज़ू पूरी कर देगी और ये अपने लाइफ भी मज़मून बना के लेगी। साथ भी इंसाफ़ करेगी। तो फिर वकास क्या हुआ कि उन्होंने मुझे, जब मैं टेलीविज़न जॉइन किया पीटीवी में न्यूज़, तो मुझे बड़ा सुंदर लगे। वो क्या लगे, किस लिए लगे? उसमें लिखने लिखाने के, रिपोर्टिंग के, डॉक्यूमेंट्री के इतने मौके कि मैंने उसमें फिर गैर महसूस तरीके से अदब दाखिल करना शुरू कर दिया। वाह। मैं स्क्रिप्ट लिखती थी तो उसको पढ़ने वाले जो सीनियर्स थे वो कहा करते थे ये किसी अदीबा ने लिखा है वाह या वाह किसी नई आने वाले किसी रिपोर्टर ने वाह लिखा वाह है। वाह हाँ, वाह। बस वहाँ से हौसले बढ़ने लगे। क्या बात है, क्या बात है। आपका पहला मजमुआ शेर मट्टी का और था, पाँव, हाँ, अफसाने का। अफसानों का मजमुआ कब था। छपा वो? डॉक्टर रशीद निसार मेरे बहुत बड़े, मैं क्या बात है समझती हूँ कि उनकी भी। उनके रावलपिंडी मुहक्किक उन इस्लामाबाद के जैसे हैं, कम वो ही क्या हुए बात तारीख है। पर नजर रखने वाले। इंतहाई मुहक्किक भी और इंतहाई शफकत। मैं आपको एक इनका वाक़या ये सुना रही हूँ इस किताब के हवाले से, मट्टी और पाँव। मुझे कहने लगे कि फरखंदा आपके अच्छे खासे अफसाने तादाद में हो गए हैं, किताब छपवाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो दफ्तर से इतनी फंसी हुई हूँ, ये मुलाजमतें भी वकास इंसान को खा पी जाती हैं बड़े आराम से। तो वो जो हैं कहने लगे अच्छा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अपना सारा पुलंदा मुझे दो। उन्होंने ये पुलंदा, जिसमें कच्चे अफसाने भी होंगे, पक्के भी होंगे, इसी ड्राइंग रूम में उन्होंने बैठकर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की, और उसके बाद उसमें से 12 अफसाने मुंतखब करके अपनी निगरानी में उसको छपवा भी दिया। क्या बात है। पहली आप किताब कहाँ तो ऐसे बुजुर्ग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, उसके बाद फिर आपका दूसरा नस्मों का मजमुआ है। जी हाँ, फिर जब माँ नज़्मों का मजमूआ है तो उसकी भी एक स्टोरी थी। असल में मुझे ज़िंदगी में जुमलों ने हमेशा तहरीक दी। चाहे वो किसी ने मुझे बाज़ दफ़ा
ताने की शक्ल में भी दी हो तो मेरे लिए तहरीक बन गई, और जिसने मोहब्बत में दी हो तो वो भी तहरीक बन गई। इस किताब माँ के लिए भी मुझे किसी ने, एक शायर ने टेलीफोन किया, बड़े अच्छा एक नाम है उनका भी, अब तो उनको शायद ये बात भी भूल गई हो, बड़ी पुरानी बात, लेकिन मुझे कहने लगे कि आप अफसाने तो लिखती हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में, हम सुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके अफसानों के छोटे छोटे जो जुमले हैं वो मिसरे हैं। वाह! तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, मैं तो कतन सोच नहीं सकती। उन्होंने कहा तुम नज़्में लिखो। क्या बात मैंने है! कहा जी मैं नज़्म लिखूँ, मैं लिखूँ? उन्होंने कहा हाँ नज़्म लिखो। मैंने यूं ही इब्तदाई तौर पर रोमानवी नज़में, यूं ही खेल खेल में जो लड़कियां करती हैं वो मैं करती गई। वो होते 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 कुछ ऐसा, हालांकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था जहाँ से मुझे फीडबैक मिले, बस अपना दिल मुतमईन होना शुरू हो गया कि ये ठीक लिख रही हूँ। फिर उन्हीं साहब को दिखाने लगी, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखनी, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखनी कोई चीज़, तुम खुद लिखती जाओ, जब मुकम्मल हो जाए मवाद। मवाद मुकम्मल हुआ तो इस किताब को एक मुहक्किक हैं पिंडी इस्लामाबाद के, उन्होंने दिलचस्पी ली। फिर इस किताब को माँ को हमने फिर छापा, और इसमें भी तकरीबन इसी तरह माँ के नाम से, उन्वान से सिर्फ माँ मदर नहीं, बल्कि इससे मुराद हर वो जज्बा जो ममता को जाकर टच करता हो, वाह! चाहे वो वतन से मोहब्बत का, मिट्टी का मोहब्बत का, धरती का, चाहे अब इसके अंदर मैंने इंटरनेशनल वाक़यात को, हादसात को भी लिखा है, और उनके अंदर से अंदर छुपी हुई उस दिलगुदाज जज्बे को, जैसे माँ से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता, यानी माँ के लेवल का, वो फिर मैंने इसमें डाल दिया। तलाश जमाल में गुमशुदा औरत, ये तो वाक़यतन किसी बड़े पैराडाइम का नाम है। एक नज़्म की लाइन हो सकती है, एक असातीरी दास्तान इस टाइटल में छुपी हुई है। ये अफ़साने अब किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में ये किताब जी। है आलमी सतह पे? बकास इसमें ये था कि तलाश जमाल में गुमशुदा औरत जब मेरे ज़हन में टाइटल आया, तो वो उस अफ़साने से उठाया गया जो इसके अंदर ज़ाहिर है मौजूद है, और उसमें खातून, चूँकि इसका बुनियादी मौज़ू औरत है, और औरत की नफ़सियाती उपज भी है, उसकी उसकी समाजी भी है, उसकी माँ के तौर की भी है, बहन के तौर की भी है, माँ यानी हर रूप में खातून को क्या-क्या चाहिए। तो उसमें ये था तलाश जमाल में कि औरत को भी एक ऐसी ज़िंदगी का साथी चाहिए कि जो उसकी जमालियाती हिस्स को पूरा कर सके। वाह! सिर्फ मर्द को ही नहीं चाहिए एक खातून के लिए जमालियात, एक खातून को भी वो जमालियात जिसका ताल्लुक आपके ज़ाहिरी हुस्न से नहीं है, वो आपके अंदर से छुपे हुए आसूदा मामलात से है, चाहे उसका ताल्लुक उसके अज़दवाजी ज़िंदगी की तारोपोत से हो, चाहे उसका ताल्लुक उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो, चाहे रोमानवी ज़िंदगी से हो। ये ज़रूरी है, खातून को भी इसकी तलाश है। वाह! अच्छा, ये तो बुनियाद हो गई, लेकिन आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि काहिरा यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से पढ़ाया जी जाए? हाँ, ये किताब जो है, ये मैं चूँकि मिडल ईस्ट से मेरा ख़ुसूसी मोहब्बतों वाला रिश्ते हैं, चाहे मैं बहुत जगहों पर नहीं गई, लेकिन पता नहीं मशरक़ वुस्ता शायद तारीख़ का और ज़माना वुस्ता हमारी हिस्ट्री के जी, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे तरबियत ही है, में बिल्कुल शामिल ऐसे है, है। मुताले में शामिल है, तो मुझे बरसगीर के बाद अगर जो चीज़ें पसंद हैं तो वो यही पसंद। तो वहाँ पर जाना-आना भी रहा, कुछ ताल्लुकात थोड़े से थे किसी के वहीं। तो उन्होंने मुझे कहा इस किताब को यहाँ पाकिस्तानी स्टॉल पर देखा, तो उन्होंने कहा कि ये किताब दो। हमने उनको कहा कि हम समझे पढ़ेंगे, वो खुद अपने लिए, लेकिन वो किताब ले जाके उन्होंने मुतारिफ करा दी किसी यूनिवर्सिटी में, वो थी ऐन उश शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा। वाह! तो उसका कोई उर्दू का जो शोबा है वहाँ पर इसको एक जदीद अफ़साना रेफ़रेंस के तौर पे पढ़ाया जा रहा पढ़ाया है। जाता है। वो बहुत अच्छी बात है ये। और एक और हवाला भी है मादाम का, सब हवालों के साथ-साथ, कि आलमी सतह पे प्रोडक्शन किया आपने। अज़रबैजान के लिए काम किया, अज़रबैजान टीवी के लिए काम जी, किया। वहाँ उर्दू चेयर है आज़र यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे वो पढ़ाती भी रही हैं आप या उर्दू। रऊफ़ अमीर के बाद मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के जो अदीब हैं उनमें मादाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने वहाँ पढ़ाया। कितना अरसा आपने पढ़ाया? मैं असल में वहाँ पर गई थी सिर्फ़ एक विज़िट के लिए बकास, यही एक विज़िट था छोटा-सा। वो ऐसे था कि 11 अफ़राद का एक काफ़िला था, जिसको फ़ॉरेन ऑफ़िस ने मुंतख़ब किया था अलग-अलग सेक्टर से, कि मलका नूर जो हैं थी अज़रबैजान में, उनका वो उन्होंने की दावत थी, और उनका कौमी दिन था अज़रबैजान का, तो हम सही, सिर्फ़ सही। तफ़रीह करने गए थे। हम तो अक्सर घूमने-फिरने गए थे। वहाँ जब मादाम ने तारुफ़ लिया हम सब से, तो उन्होंने चंद एक को मुंतख़ब किया कि आप पसंद करेंगे कि आप यहाँ हम आपको अगर कोर्सेज़ दें?
वाह हमारे तालीमी शोबे के लिए, या आपको ऑनलाइन पाकिस्तान से मौका दें। हमने वाह कहा जी वेलकम, हमें तो बहुत खुशी हुई है सुनकर कि इसी बहाने आज़रबाईजान के हुस्न को कशीद करते रहेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो बस इस तरह से मुझे मौका मिला, लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मैं हैरान हुई कि उर्दू ज़बान के साथ जो शगफ़ बच्चों में देखा गया, नौजवान बच्चों में, उन्होंने कहा हमें उर्दू ज़ुबान सिखाएं, बताएं। वाह तो फिर उनके साथ कुछ क्लासेस ली मैंने वहीं, और फिर अब ऑनलाइन आज भी पढ़ाती हूँ। नाज़रीन, जहाँ तख्लीक की ये सतह हमने देखी कि नज़में भी लिख रही हैं, अफ़साने भी लिख रही हैं, वहीं पर्दा सीमी पे भी मादाम ने अपने जौहर दिखाए। तो ड्रामा प्रोड्यूस किया, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की, न्यूज़ प्रोड्यूस की, क्या-क्या किया, ज़रा हाँ, इस बारे में भी बिल्कुल बताइए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है इस चीज़ का इज़हार करना कि पीटीवी ने, पाकिस्तान टेलीविज़न में जो भी शोबाजात हमारे हिस्से में आए, जो लाज़िम थे सीखने, वो सब में काम किया। डेस्क पर एडिटिंग की, वाह खबरें, बुलेटिन्स हर घंटे बाद होते थे, वो किए, और खबरनामे किए। और उस सबसे बढ़कर ये कि जो 2 ऐसे काम थे जिसमें मैं इज़हार करते हुए खुशी महसूस करूँगी कि नौकरी के अलावा मैं नौकरी में रहकर या नौकरी से हटकर भी जो काम किए, उनमें एक तो ये था वकास कि मैंने कुछ ऐसे रिपोर्टिंग्स का आगाज़ किया, कल्चर ऐसा डाला कि उस रिपोर्टिंग में, खबरनामे की रिपोर्टिंग में अदबी स्क्रिप्ट आने लगा, चाहे वो मौज़ू सियासी हो, चाहे वो मौज़ू सियासी हो। एक अदबी अंदाज़ की उसमें वो नज़्कारी करने की कोशिश की, और फिर मैंने नज़्मिया रिपोर्टिंग की। यानी लोग नस्र में ही हमेशा रिवाज था करने का, मैंने नज़्मिया शक्ल में ख़ुसूसन तहरीक-ए-पाकिस्तान की रिपोर्टिंग, उसके अकाबरीन को क्या मैंने बात है, जो है वो नज़्म में लिखा, कायद-ए-आज़म क्या पर, बात है। लियाकत अली ख़ान पर, फ़ातिमा जिन्ना पर, चौधरी रहमत अली पर, यानी एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा 1930 से लेकर 1947 तक का जो अरसा है तहरीक का, उसको भी मैंने जब लिखा, डॉक्यूमेंट किया, तो उसके अंदर अशआर के सहारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने अखबार में जो है वो अशआर के ज़रिए यानी वाह वाह नुमायाँ करते थे वाह जज़्बात वाह को। वाह तो वाह बस वाह मैंने अपनी शायरी उसमें डाली, वाह और वाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतना पॉपुलर हो गए वो सेगमेंट कि फिर बाकी चैनल्स ने भी उसे कॉपी किया, वाह पैरवी वाह। की और उसकी। डॉक्यूमेंट्री ही आपने अज़रबैजान में भी की? फिर डॉक्यूमेंट्री जो है वैसा शोबा था, जो हालात-ए-हाज़िरा के डिपार्टमेंट में जब मैं डेपुटेशन पर गई, तो मुझे वहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। वहाँ फिर मैंने मुसलसल दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाई जिसमें 3 मौज़ूआत थे। सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बाहर के लिए बनती थी वो, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, तहरीक-ए-पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कौमी ज़बान दुनिया में। वाह 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 इन वाह। 3 पर मैंने लगातार काम किया, जिस पर मुझे बहुत से एज़ाज़ात मिले। मैं वो सवाल करने लगा जी था कि हाँ। हुकूमती सतह पे क्या आपके इस काम को सराहा गया? जी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मुझे मेरे इस रियल और ओरिजिनल प्रोफ़ेशनल्स ने बहुत सराहा, जो मेरे अपने दफ़्तर के सिखाने वाले थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद मुझे दूसरी जो हौसला और एतमाद मिला, वो मुख्तलिफ़ अवार्ड्स की शक्ल में मिला। मुझे अमेरिका से वीमेन ऑफ द ईयर 2005 का टाइटल मिला, गोल्ड मेडल, और अज़रबैजान से, कतर से, बरतानिया से, हिंदुस्तान से मुझे काफ़ी अवार्ड मिले। ख़ास तौर पर अफ़साना, और फिर डॉक्यूमेंट्री नंबर 2 पे आती है। डॉक्यूमेंट्री में मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं कुछ करती थी, क्योंकि वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो विजुअलाइज़ है, जिसमें विजुअल है, मुतहर्रिक डॉक्यूमेंट्री है। बेशक तो ऐसे है। उसके ऊपर इस तरह मुझे मिला-जुला के अब तक वकास तकरीबन 75 अवार्ड मिल चुके हैं। माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। और यकीनन बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हैं, और ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे मतलब मैं खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि मुझे अपने अहद के बड़े लोगों की शफ़क़त और दुआ हासिल है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। और अगला जो मौज़ू है वो है नॉन जेन्युइन ख़वातीन, मर्द, जो भी फ़नकार, नॉन जेन्युइन फ़नकार वो, और पाकिस्तानी ख़वातीन को अदबी सतह पे किन मसाइल का, प्रोपेगेंडा का, माफियाज़ का, बहुत से जो इश्यूज़ हैं उस पे वो प्रोग्राम मैंने मैडम के साथ रिकॉर्ड कर लिया है। मादाम के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उसका तारुफ थोड़ा सा इसलिए दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम महज गुफ्तगू नहीं करते, अमल पहम के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अलहम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।